Good morning, children. Welcome back. Today we are discussed the sum of n terms of an AP. In our previous class, we have solved the exercise of nth term of the AP. Today we discuss the sum of n terms of it. How we will find the sum of n terms of an AP? See the property of the AP. Suppose you have an AP, we have an example to explain you. Example. S equal to, there is an AP. Their terms are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Suppose there is an AP, we want to find their sum. Maybe you take some more terms, plus 17, plus 19, plus 20. Now, if you write this AP in reverse form, लास्ट टर्म को पहले लिख लीजिए 17, फिर क्या आएगा देखें, प्लस 15, प्लस 13, प्लस 11, प्लस 9, प्लस 7, प्लस 5, प्लस 3, प्लस 1. लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम ऐड कर दें दोनों को. इफ वी फाइंड देयर सम, s plus s, that is 2s. See what happened. This is 18, 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 this is 18. See, this is the property of an AP. Whenever you have an AP, you write the AP in ascending order, then second time in descending, or first descending, then ascending, means reverse order में लिखा, दोनों का sum find कर दिया. Then how many times you have 18? 2, 4, 6, 8, 9. There are 9 terms. How many terms? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 18 plus 18 plus 18, how many times? 9 times. So you say 2s equal to 18 into 9. That is s equal to 18 into 9 upon 2. That is 81. This is true for each and every AP. Whenever we want to find the sum of an AP, the number of terms is given, that is there are finite number of terms, countable number of terms, then how we will find the sum? We have to write the AP in ascending order, then in descending order, find their sum, as you have this in example, and then you have to find the value of sum, that is s. So we applying this concept to drive and formula. बार बार तो हम ये प्रोसेस करेंगे नहीं. एक बार आपने देख लिया, this is the property. On the basis of this property, we have a formula for the sum of n terms of an AP. So how we will drive this formula? See, formula हम drive करते हैं. Suppose there is an AP having how many terms? N terms. General form an AP. You know how we will write the general form an AP? Let s equal to a, second term a plus d, third term a plus 2d, and so on. There are n terms. So second last term a plus n minus 1 into d. As you know, the nth term is a plus n minus 1 into d. This is the last term, nth term. Now you write as earlier you have s equal to, in reverse order, last term को पहले लिख लीजिए जी, a plus n minus 1 into d. Then second last term लिखिए, क्या आएगी जी, a plus n minus 2 into d.
plus a plus n minus 3 into d and so on. इधर क्या आएगा जी? सेकेंड लास्ट, दैट इज a plus d at last. इसके पहले a plus 2d के साथ यहां पर a plus n minus 3 into d आएगा, वो मैंने नहीं लिखा. अभी इनको आप ऐड कर दे. फाइंड देयर सम, जैसे एग्जाम्पल में आपने किया. इस टर्म को इस टर्म, फर्स्ट टर्म विथ लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म विथ सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म विथ थर्ड लास्ट. सिमिलरली दीज टू टर्म्स इन टर्म्स का करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ ऐड करें. क्या बनेगा? a प्लस ए, s प्लस एस 2s, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन दोनों का सम. अब इन दोनों को ऐड करना है तो लाइक टर्म्स ऐड होंगी. a प्लस ए दैट इज 2a. अब n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, यू टेक d कॉमन. n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, टेकिंग d कॉमन. सो व्हाट हैपन? n minus 2 into d plus d common, then n minus 2 plus 1 into d, that is n minus 1 into d. So we have to write directly n minus 1 into d. Similarly, see here 2a plus n minus 1 into d. Similarly, second last 2a plus n minus 1 into d. Similarly, last 2a plus n minus 1 into d. This is the second last. So on. See how many terms are there? जैसे previous example में मैंने लिया उसमें 9 terms थी. इसमें कितनी terms हैं? There are n terms. So like term, that is x plus x plus x plus x n times. तो क्या आएगा? nx, x plus x plus x 3 times तो 3x, 5 times तो 5x, n times तो nx. What is x here? ये पूरी टर्म है. That is we have to write s equal to n into, ये n कहां से आया? Got it? ये n क्यों आया? यही टर्म्स बार बार रिपीट हो रही. How many times? n times. तो उसको सम करके n into में आएगा. So what is the formula? s equal to n by 2 को अपॉन में लाया, 2a plus n minus 1 into d. This is the formula used for to of the sum of n terms of an AP. Then not necessary you have to write first AP लिखें, फिर उसको रिवर्स लिखें, फिर वो ऑपरेशन बार बार करने की जरूरत नहीं. यू हैव डायरेक्ट फॉर्मूला. इससे आप डायरेक्ट यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ यू रिमेंबर, दिस इज वेरी यूजफुल. You remember it. इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Now you remember what is the nth term of the AP. Nth term of the AP is an equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. So the sum of the n terms of an AP, sometime it is written as Sn or only S equal to n by 2, 2a था तो उसको मैंने क्या लिख दिया? a plus n minus 1 into d. See this value. This is the nth term of the AP. So in some problems, in some cases, you know the nth term of the AP, then you have to write in this form. Sn equal to a n by 2 into a plus a n. An stands for nth term of the AP. Suppose there are finite number of terms in the AP. So that is nth term is last term also. So in some cases nth term may be called last term of that AP. Last, if there are only n terms, so it is denoted with L. So sometimes this formula may be written as S equal to n by 2 into a plus L. L stands for last term. These are the very useful concept to of the sum of n terms of the AP. Now, so we summarize. What are the formula? Either you have to write in this form, यहाँ 2a plus n minus 1 into आएगी. Otherwise, you write in this form or in that.
ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 में यूज करने होंगे। whenever you want to find the sum of the n terms of the AP, then you have to use this. Now there is a remark, very useful remark, dear children. Suppose you want to obtain Sn, that is sum of n terms, then can you tell me what is the formula? अभी अभी ड्राइव किया Sn, जिसको मैंने S लिखा था और ऐसे n stands for sum of n terms, then what is the formula? n by 2 2a plus n minus 1 into। अब मैं इससे प्रीवियस टर्म तक सम निकालूं Sn minus 1, then what is n minus 1 by 2 2a plus n minus 1, that is n minus 1. I want to ask you what is this? आप कहोगे सर this is the sum of n terms, मतलब t1 से लगाकर till tn है n टर्म का सम। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म से लगाकर कहां तक है सर? n माइनस 1 टर्म्स तक। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, ध्यान दीजिएगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 टिल टर्म n माइनस 1 प्लस टर्म n, इट इज n by 2 2a plus n minus 1 into d. What are these t1 t2 t1 t2 t3 tn till they are the terms of the AP. And what is the sum of these n minus 1 terms? You see, it is Sn minus 1. So you say, sir, Sn minus 1 plus Tn, and what is this right hand side? Sn. ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। इसको मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या मिलेगा सर? nth टर्म इक्वल टू n टर्म से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर दीजिए, आपको nth टर्म मिल जाएगी। So whenever you have Sn, you want to find the nth term of the AP, then you remember n टर्म के सम से आप n माइनस 1 टर्म सम का माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगी वो nth टर्म माइनस रिमेनिंग होगी। दिस इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सम से हम डायरेक्ट nth टर्म निकाल लेंगे। देयर आर some more way by which you find a and d and you are applying the formula. What is this shortcut? Clear? Now we start the exercise 5 point, yes, 5.3. Can you read the first question? Find the sum of the following APs. First, 2, 7, 12, 2 10 terms. Up to 10 terms. 10 terms. This is the AP. We want to find the sum of AP. There are 10 terms. First we want to calculate the first term, that is 2. And what is the common difference? 7. Second term minus first term, that is 5. What is n? 10. अब आपको फार्मूला मालूम है जी, Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. Substitute the values and calculate it. ये आप सॉल्व कर सकते हैं। a नोन है, d नोन है, नंबर ऑफ टर्म्स नोन है। आपको रिलेशन अभी अभी प्रूव करके आपने देख लिया। इसमें a का फर्स्ट टर्म, d नी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन थी, वो सब्स्टिट्यूट कर देना, कैलकुलेट कर लेना। प्लीज डू इट, करिए इसको। मैं आके चेक करता हूं कॉपी आपकी। डू इट। यहां नहीं देखना है, आप अपनी कॉपी पर करेंगे बच्चों।
देखो जी, मैंने मिस्टेक की है, चेक एरर, कहां एरर किया, कुछ गड़बड़ किया, आप अपनी कॉपी पर चेक करिए। यस, मिस्टेक है ना, मेरा तो 245 आ रहा, आपका भी? यस, देन इट इज करेक्ट, गुड। So how you will solve the question? You understand? You got it? To solve the exercise, similarly you have to solve the question number first का ये first था. You may solve remaining questions, remaining part of question number first. Yes? Try to solve them. Now, see the question number second. रिमेनिंग क्वेश्चन फर्स्ट के आपको ट्राई करने हैं माय डियर चिल्ड्रन। यदि आप ट्राई करोगे बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से। अपने एफर्ट से जब आंसर आ जाता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए प्लीज ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन एफर्ट्स अप्लाइंग कंसेप्ट। सी दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज वेरी यूजफुल। सेकेंड में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड? सेकेंड फर्स्ट, रीड इट। Find the sums given below. First, 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14 plus dash plus 84. This is the problem. You want to find the sum of the AP given here. What is the difference in previous question? That is first question में और इसमें क्या difference है? First question में आपको A given था, D given था, आप बोलोगे सर यहां भी given है। What is the first term? A 7. What is the common difference? 10 and 1 by 2. That is 10 to the 20 plus 1. 21 by 2 minus 7. 10 whole 1 by 2, that is 21 by 2 na? You remember? Then what is the common difference? LCM ले लीजिए। 21 minus 14, that is, yes, 7. by 2. LCM देखिए, ये तो पहले भी गिवन था। अभी what happen, यहां ना आपको लास्ट टर्म गिवन है ना कि एन। बहुत मिस्टेक कमिट करते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे क्लास 10th के। वो नंबर आप लास्ट में उसमें लिखा था अप टू 10th टर्म, अप टू 15 टर्म, अप टू 20 टर्म, वट एवर यू हैव द प्रॉब्लम वहां लिखा रहता, टर्म लिखा रहता। बट ये क्या है? अप टू 84, दैट इज 84 इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी, दैट इज 8th टर्म। सो हियर एन नहीं गिवन है, क्या गिवन है आपको? एन, ये एन गिवन है। दिस इज 8th टर्म ऑफ द एपी, दिस इज नॉट एन, यू रिमेंबर, दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहले आपको 8th टर्म के थ्रू क्या फाइंड करना होगा? एन। एक्चुअली यू रिकॉल, ए चाहिए, डी चाहिए एंड एन चाहिए, बट एन ना हो के यहां क्या गिवन है? एन। अब एन से हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, हमको फॉर्मूले जो मालूम है आप रिकॉल करें। क्या क्या फॉर्मूले थे आपके पास? S इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे सर यहां तो हमको लास्ट टर्म गिवन है, सो a प्लस एन ये यूज कर सकते हैं, बट इन बोथ केसेस यू रिक्वायर्ड एन। विदाउट एन तो सॉल्व नहीं होगा। सो हाउ वी विल फाइंड एन? एन फाइंड करने के लिए आपको 8th टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा। उससे पहला स्टेप होगा आपका एन फाइंड करना। एन फाइंड करने के बाद इसको यूज करने, चाहे इसको यूज करने, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो व्हाट इज 8th टर्म? 8th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। इस एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जी। अब ए नोन है, डी नोन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, एन फाइंड करो। यस, राइट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मैं आके चेक कर रहा हूं कॉपी आपकी। यस, डू इट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डी
एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एन की वैल्यू सबको कॉपी पर फाइंड करनी। मैं तो अपनी क्लास जिस दिन स्टार्ट होगी, आज की डेट लिख लेना है ऊपर टॉप पर आपको, टुडे इज 23rd 6, और वो कॉपी आपको चाहिए जो अटेंड क्लास ऑनलाइन जो आपने अटेंड की, उसमें आपने कैसे सॉल्व किया था, आई विल चेक। सो प्लीज राइट ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ए डी का क्या करना है, ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एन कैलकुलेट करना है। करिए, मैं आके चेक कर रहा हूं कैसे आप करते हैं। एन का वैल्यू यस, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने कर लिया है। यस, ए 7 n -1। नो नीड टू सी टूवर्ड्स दी मोबाइल और लैपटॉप, स्क्रीन नहीं देखना है आपको, अपनी कॉपी पर देखना है। n -1 इंटू डे 7/2 इक्वल टू 84। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, चेक कर लीजिए ऐसे ही किया है क्या। जिन्हें नहीं किया वो ध्यान से देखेंगे, जिन्हें कर लिया वो चेक कर लेंगे। 84 -7, 7 को यहां ले जाइए, n -1 इंटू 7/2 इक्वल टू 77। आए क्या। अभी n -1 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू रिमेंबर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 2/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। डू यू रिमेंबर हाउ यू विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन क्लास 6, 7, 8? Applying the concept. 7, 11, that is n equal to 11 2 जा 22 प्लस 1 शिफ्ट किया 23। मेरा तो 23 आ रहा, आपका जी 23 नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है 23 आना चाहिए, सभी का आ रहा है। वेरी गुड, 23। सो n इक्वल टू क्या आया, 23। अब बेटे हमको a मालूम था, d मालूम था, an मालूम था, हमने ये जो कैलकुलेट किया इससे हमको क्या मिल गया, n का वैल्यू भी मिल गया। नाउ वी विल यूज दिस n, इस n को यूज करके हमको अब सम निकाल देना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। 50% अभी क्वेश्चन हुआ। हमने इतना जो ऑपरेट किया, ये जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई, इससे हमको n प्राप्त हो गया मेरे भाई। अब क्या करिएगा, सम निकालना था। अब आप बोलेंगे सर देयरफॉर सम इक्वल टू, इसको रब कर लो क्योंकि बच्चों फिर आपको दिखेगा नहीं, मैं छोटा लिखूंगा, a और d की वैल्यू आपसे पूछूंगा। नाउ सेकेंड पार्ट, n/2 a प्लस an, मैंने ये वाला यूज कर दिया। आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, 2a प्लस n -1 इंटू डी वाला, वो भी उससे भी आ जाएगा। क्या आउटकम आया, n का वैल्यू तो मुझे लगता है 23 आया है जी, आपका भी। व्हाट इज a 7 एंड व्हाट इज दी an, 84। 23/2 इंटू 91 क्या, देन मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2093 2093/2। 91 को 23 से इंटू किया, याद है आपको कैसे करते थे, ऐड कर दीजिए, ये आंसर आ गया जी, सम। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली दे मे आस्क, आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको पहले n कैलकुलेट करना होगा, देन यू विल कैलकुलेट ओनली सम। क्लियर। सो सेकंड के बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व देम। डेट डाल के करना है। मेरी क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे करेंगे, मैं कॉपी पे चेक करूंगा, बाकी बच्चे भी करेंगे। मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे सारे साथी हमें जानते हैं, सब हमारे फ्रेंड्स जानते हैं, वो निश्चित रूप से चेक करेंगे कि आपने क्या सॉल्व किया था, दिखाइए कैसे सॉल्व किया था।
Thank you. Next. This is the question number second. I think second के remaining part आप करोगे. Now you see the question number third. In question number third, you have some values. A आपको given होगा, D given होगा, N given होगा, An given होगा, ऐसे. इनमें रिलेशन गिवन है सर. किसी प्रॉब्लम में डी एन तीनों गिवन है तो ये अननोन है. किसी मतलब आप देखेंगे फर्स्ट से लगाकर देयर आर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स 10 प्रॉब्लम्स. इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम you have the values a d n. A for first term, d for common difference, n number of terms, nth term and their sum, n term का sum. इनमें से कुछ ना कुछ गिवन होगा. आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करके अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर देना है. फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे? वंस अगेन यू रिकॉल देम. इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगेगा? a इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यू रिमेंबर, बार बार आपको फॉर्मूले लिखने. फॉर्मूले लिखोगे, यदि आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे. मींस बिगर मंत्रोच्चारण के पूजा नहीं होती. पहले आपको फॉर्मूले दैट इज मंत्रोच्चारण आना चाहिए. ये आपको बार बार लिखने हैं. ये बेसिक है, इसको लिखेंगे, यही यूज होगा. ये यूज होना ही है, इसके बिना एपी नहीं हो. बस तो बार बार लिखिए. इनमें से इन्हीं रिलेशंस को यूज करिए. अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए एंड ट्राई करिए सॉल्व करना. फर्स्ट में क्या क्या गिवन है? Can you tell me what are the given values? A equal to 5. A का वैल्यू 5, G D equal to 3. 3, yes. An equal to 50. An equal to 50. 50. An An. nth term is N 50. 50. ये टर्म आपको 50 गिवन है. फर्स्ट टर्म A is 5, D कॉमन डिफरेंस is 3, N अननोन है एंड Sn अननोन है. यही है क्या? Yes. मतलब आपको फाइंड क्या करना है? N एंड Sn. अब देखिए जी, मुझे लगता है ये सेकंड क्वेश्चन ही है. सेकंड क्वेश्चन जैसे किया वही ना हुआ. उसमें क्या किया था आप चेक करिए. उसमें केवल आपको एक प्लस में सीरीज दी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी थी. उसमें आपने ए डी और ए एम गिवन था. एन पहले कैलकुलेट किया. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दी एन विद द हेल्प ऑफ एन? कैन यू टेल मी कौन सा रिलेशन पहले ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा? व्हाट इज द प्रोसेस? इसको कहते हैं एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. पहले क्या करिएगा? एन फाइंड करना है तो पहले किसको यूज करिएगा? एन को यूज करिएगा. क्यों सर, आपके रट के आए सर? नहीं भैया, नहीं बच्चों, यू बिलीव मी, मैं रट के नहीं आया. मैंने देखा nth टर्म नोन है, a नोन है, d नोन है, n फाइंड करना है, तो ये रिलेशन लगाया. व्हाट इज an? an is 50. व्हाट इज a? 5. n अननोन है क्या? यस अननोन है. व्हाट इज d? 3. इसको सॉल्व करिए, n आ जाएगा जी. इसको सॉल्व करें, n आ जाएगा. कॉपी पर करना है, मैं आके देख रहा हूं कॉपी. जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाएंगे. हम लोग सबकी आपकी अटेंडेंस ले रहे हैं. जो बच्चा नहीं आ रहा है उसके यहां हम फोन करके पूछेंगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. प्लीज कोऑपरेट करिए और जो कड़ाई सॉल्व कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए. यही टाइम है जिसको यूटिलाइज आपको करना है. क्या आया देखिए, मैंने 50 माइनस 5. नो नीड, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे करें आप. आप पहले ब्रैकेट भी ब्रेक कर सकते हैं. यू हैव योर ओन वे. 45 अपॉन 3 डिवाइड कर लिया 3 से. n माइनस 1, 15 प्लस 1 दैट इज 16.
एन का वैल्यू मेरा तो 16 आ रहा है, आपका क्या आ रहा? आई डोंट नो। 16 नहीं आ रहा है, किसका? आपका? मेरा तो आ रहा है, आपका भी? यस 16। सो एन का वैल्यू 16 आ गया। अब बेटे एन की जगह आपने 16 लिख लिया, एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, वन पार्ट इज ओवर। नाउ व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? डेस्टिनेशन इज, सेकंड वैल्यू क्या फाइंड करनी है? एसएन। सो हाउ वी विल यूज द रिलेशन, आइदर दिस वन और दैट वन। कौन सा रिलेशन यूज करूं? ये ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें एन टर्म भी नोन है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्लीज यूज द रिलेशन। नाउ Sn equal to n by 2 a plus an. What is n? 16. 16 अभी ऑप्ट किया। What is first term? 5. What is last term? 50. 50. Then it is 8 into 55. 440 volt current. यही है क्या? Yes, मेरा भी यही आंसर आया। So this is the sum of 16 terms of that AP. This is the answer. So how you will solve the problems of problem number third? Sum के problem number third के पार्ट कैसे करने हैं? You remember, in some problem you may form quadratic equation of n. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो क्वाड्रेटिक का या तो फॉर्मूला लगाइएगा या फैक्टराइजेशन मेथड लगाइएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एन की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स में आ गया -15, वेदर -15 इज पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म तो नेगेटिव नहीं होगी, उसको निग्लेक्ट करिएगा, जो रियल है पॉजिटिव है उसको लीजिएगा। सो स्पेशली इन क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड का 8 ऐसा है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो यू ट्राई the remaining questions as I have discussed. Quadratic equation आप साइड बना लेंगे। Then see the fourth, fifth सेम करने हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं। थर्ड का 8 बताऊं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते आ जाएगा, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट see the problem number 4th. Same problem once again. Read करिए। How many terms of AP 9, 17, 25 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? This is the equation actually. 9, 17, 25 and so on. I have suppose, let us suppose there are n terms of that AP gives the sum is, yes, 636. We want to find number of terms, that is n हमको find करना है। सर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? n unknown है, n by 2. First you calculate a, what is the value of a here? 9. What is the value of d? 17 minus 8. 17 minus 9 that is 8. कैसे निकाला? 17 से 9 माइनस किया, क्या आएगा? 8 तो आएगा। देन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला? n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to 636। ये मैंने सम फॉर्म में लिख दिया। n अननोन है, what is a? 9, n minus 1, what is d? 8, 636। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। अब भी बोल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, थर्ड का 8 जो होगा उसमें भी ऐसे ही फॉर्म होने वाला जी। इसको सॉल्व करिए, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से किया है, दे आर एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यस, ट्राई करिए, इक्वेशन फॉर्मेशन करिए। मैं चेक कर रहा हूं कॉपी। यस, सी आपने
आपने इक्वेशन बनाया n/2 multiplied by 2 into 9 plus n/2 multiplied by n minus 1 into 8 equal to 636. मैंने ब्रैकेट ब्रेक कर दिया जी, n/2 से इंटू कर दिया, आपने ना किया होगा, हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हो। 2 कैंसिल, 2 4 जा 8। क्लियर? देन व्हाट हैपन, क्या हुआ, यहां लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पर, आप कंटिन्यू लिखिए, आपको भी ऊपर नहीं लिखना, नहीं पता पड़ा आपने कैंसिल करके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दी। कॉपी कमेटी का मेंबर नहीं बनना है। 9n प्लस n का इंटू करिए इसमें, n स्क्वायर माइनस n इंटू 4 इक्वल टू 636। n का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अभी 4 से भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए, 4n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 636। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यू रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहला टर्म स्क्वायर वाला लिखिएगा, देन 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल, यहां x की जगह n है, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट, क्या लिखिएगा, 4n स्क्वायर, 9n माइनस 4n, कांस्टेंट इसको लेके आइएगा, माइनस 636। हमको तो समझ आ गया, आपको भी आ गया, वेरी नाइस। क्या बना जी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्या ही समझ आया जी, क्या ही समझ आया, ये इक्वेशन फॉर्मेशन हुई। व्हाट इज द इक्वेशन, 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. Can you tell me the type of the equation, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, and your previous unit was quadratic equation। एपी के पहले सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करना है। So there are two way, one is called factorization method, other is called formula method। What is formula, you remember, पहले क्या कैलकुलेट करते थे, d, आप कंपेयर कर लें, n स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5, n का कोफिशिएंट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, विद साइन लीजिएगा, माइनस 636। क्लियर, आ गया। अब आप क्या कैलकुलेट करिए, डिस्क्रिमिनेंट, पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, v स्क्वायर माइनस 4ac। यू मे अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड, डियर चिल्ड्रन, रिमेंबर, वो भी अप्लाई करके बता दूंगा। 5 स्क्वायर माइनस 4, a is 4, c is माइनस 636। देन यू सी, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करो, यस, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है। So you may calculate this, 5 square 25 प्लस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 इंटू 4 इंटू माइनस माइनस से प्रोडक्ट हुआ प्लस, 4 इंटू 4 दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 636। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16 इंटू 36, 636, 16 6 96। आप लोग करिएगा, इससे मत देखिएगा, मैं हो सकता है रॉन्ग लिखूं, आपको चेक करना है। पहले 6 का कर लिए, चलिए 6 6 36,
6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 plus 3 21, 6 6 जा 25 plus 10176. अब ऐड कर लीजिए 170 में 28 किया 190, 190 में 11, 10201 आ रहा होगा। ये क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट आया जी। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया, फॉर्मूले को यूज करें। व्हाट इज दी डी? डी आया 10201। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डी? अब आपको पैटर्न याद होगा, क्लास 11th आपको क्लास 9th में पैटर्न बताया गया, 8 में आई थिंक इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 101। आप निकाल के देखें, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको लर्न है। 10201 1102 then 0 then 01 1 so it is square root of, इसको आप 101 into 101 that is 101 आया जी। ये आया रूट डी का वैल्यू। क्लियर? पहले ही रूट डी आपने कैलकुलेट कर लिया। नहीं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एक्स की जगह हम एन लिखते थे, वहां फॉर्मूला लिखते थे एक्स, यहां एन लिखेंगे क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था वो एन का क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डी अपॉन 2a। मैंने अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? सी, बी इज 5, दैट इज माइनस, फार्मूले का माइनस है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू क्या निकाला जी, 101 अपॉन 2a। व्हाट इज ए? 4 आई थिंक, ए का वैल्यू 4 है। ये आ गया जी एन। अब टेकिंग प्लस साइन, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। प्लस साइन लिया तो -5 प्लस 101 अपॉन 8 2 4 जा, और माइनस साइन लीजिए, एन इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। दोनों को कैलकुलेट करके देखिए, -101 plus 5 that is plus 96 upon 8 that is 12, n equal to 12, or n equal to -106 upon 8. It is never possible, n is never negative dear children, so it is not possible, so it is neglected. It is not possible. Why not possible? n is a natural number. Number of terms आपने कभी सुना है नेगेटिव या फ्रैक्शनल? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। यानी फ्रैक्शनल पॉजिटिव होता और फ्रैक्शनल आता तब भी पॉसिबल नहीं होता। सो ये नेग्लेक्ट होगा। यू गॉट इट? दिस इज द वे बाय विच यू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ समेशन अननोन वैल्यू n स्पेशली फाइंड करते टाइम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना के सॉल्व करना है आप समझ गए। अभी सर इसको हम, इफ यू टेल मी द इक्वेशन, सेकेंड और अल्टर मेथड से भी कर सकते हैं। आपको याद है, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके बताया। जैन प्रिंसिपल सर ने आपको बताया था, उन्हें क्लास लिया था हाउ यू विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रिंसिपल बालाघाट श्री जैन सर ने आपको बताया था सॉल्व करके। वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। रॉली मैडम ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बताया। इसका एक और तरीका हो सकता है, और
Can you tell me the equation? 4n square 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. ये इक्वेशन है. हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं. डियर चिल्ड्रन, मैं ऐसा मानता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड इजी होता है यदि बच्चे को समझ आ जाए तो. हाउ यू विल सॉल्व? इसको फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो आप मिडिल टर्म पहले लिख लें सर. इसको हम अपने बच्चों को एमटी लिख देते हैं. एमटी फॉर मिडिल टर्म. मिडिल टर्म कैसा है? पॉजिटिव है. नाउ द रिमेनिंग टर्म्स जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट, इनका प्रोडक्ट लिखो. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्म्स, दैट इज 2500 4n square minus 636. Yes? Minus 636 2544 2544. 44 ये प्रोडक्ट किया मैंने. 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 12 प्लस 2 14 25. ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है. जो प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो स्प्लिटिंग पार्ट जो होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे. मेरी बात ध्यान से सुनना. प्रोडक्ट यदि नेगेटिव आया तो स्प्लिटिंग पार्ट जो होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आएंगे, उनके साइन अपोजिट आएंगे. जो लार्ज होगी उसका साइन प्लस आएगा क्योंकि मिडिल टर्म प्लस की है, और जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव होगा, स्मॉल वाला. एंड अपोजिट साइन के नंबर रखने हैं आपको. अब आपको क्या करना है, ये 2544 के फैक्टर निकालने. इसको ऐसे फैक्टराइज करिए कि यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज 2544 2544 एंड दैट डिफरेंस इज 5. सम नहीं, डिफरेंस. डिफरेंस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस आएगा. प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो सम आता. प्रोडक्ट पॉजिटिव आता तो सम आता. सो इसको फैक्टराइज करो सर. इसको फैक्टराइज करके आप प्रोडक्ट बना के पेयर बना लो. तो पहला तो सर 4 से ही बन रहा था. आप देखें, पहले तो 4 से ही बन रहा था. 2 से डिवाइड करता हूं. 2 1 या 2 2 या 4, 2 7 या 14, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 6 या 12. Then you see it is again 2 2 3 या 6, 2 1 या 2 8. Then 3 3 1 0 3 6. यहां 16 लिख देते हैं बच्चे जल्दबाजी. अभी 2 से और डिवाइड हो रहा था, 2 से और कर लो. 2 1 या 2 5 या 10, 2 9 या 18. Got it? 2 1 या 2 5 या 10. अभी 3 से करिए. अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से करिए. 3 5 या 15 3. अब तो नहीं होने वाला. 53 कैसा नंबर आ गया? प्राइम नंबर आ गया. यही है सर. 8 16 3 या 48. 2 2 या 4, 2 या 6, 2 या 8 3. 2 4 6 8 3. 16 into 3 48 into, क्या किया मैंने? 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 या 16 into 3 48 into 53 लिख सकता हूं. Then 62 4 4 16 into 159 लिख सकता हूं. और भी आप 2 into 1272 लिख सकते हैं. आपको इनमें से वो पेयर देखना है जिसका डिफरेंस 5 आ रहा है. कैन यू टेल मी किसका डिफरेंस? पहले ही मैंने लिखा, बीइंग ए टीचर आई नो, इसी से आएगा. इतनी प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए कि फैक्टर्स निकालने के बाद अब वो आइडेंटिफाई आप कर ले पेयर बना बना. सो 48 एंड 53 है सर. अब 48 53 में ग्रेटर कौन है? तो 53 का साइन क्या आएगा? प्लस. नी से आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. क्लियर? अब आप क्या करिएगा सर, इससे आप n कॉमन लीजिएगा. क्या रह जाएगा जी? 4n प्लस 53. इससे आप कॉमन लीजिएगा 12 माइनस 12. क्या रह जाएगा? 4n प्लस 53 इक्वल टू 0.
4n plus 53 होल कॉमन n माइनस 12। अब आप बोलोगे 4n plus 53 इक्वल टू 0 और n minus 12 इक्वल टू 0। That is n equal to minus 53 by 4 और n equal to 12। ये तो पॉसिबल है बट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? This is the way, but it depends on the practice. Children, if you make the practice of the factorization, then the factorization is very useful method. You will solve the questions in a smart way. If you have the command in factorization, you practice like this. This is the way by which you solve the problem of sum of the n terms of the AP. There are some more problems you solve, and if you have doubt, you may ask with your subject teacher. And our class, you solve the remaining problem, try to solve and post the doubt in our regular class. In our class, as you know, classes में भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, टाइम टेबल आपको मिल गया। उसके अकॉर्डिंग आपको जो डाउट आए वो पोस्ट करिए, हमारे साथी लोग और मैं अपनी क्लास के बच्चों को वो सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।